Hello everyone, hope you are fit and fine. Today I am going to explain second chapter of Flamingo named Lost Spring written by Anis Jung. As we all know, spring is a season associated with optimism and hope. It also works as a metaphor for the childhood stage of our life. The phase of childhood is all about innocence, energy, and tremendous inclination towards outdoor activities, along with fun and play. And playtime doesn't have any limit. This is an excerpt from the book Lost Spring or Stories of Stolen Childhood. Excerpt means Ansh. It is divided into two parts. First, sometimes I find a rupee in the garbage. This story is about Sahib, who is a rag picker. Second part is titled as I want to drive a car. In this story, Mukesh is main character. He is a bangle maker. He wants to be a motor mechanic, but themes in both the parts are same: poverty and child labor. So let's start with the chapter. First part. Sometimes I find a rupee in the garbage. कई बार कचरे में मुझे रुपया मिल जाता. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging. Scrounging means searching for gold. Actually, garbage is gold for them because they find items that they sold for cash in the garbage dump of my neighborhood. तुम यह क्यों करते हो? मैं मतलब अनीस जंग साहिब से पूछती जब मैं प्रतिदिन उसे कूड़े के ढेर में सोने की खोज करते हुए पड़ोस में मिलती. Sahib left his home long ago, set amidst the green field of Dhaka. Amidst means in the middle of. His home is not even a distant memory. मतलब अपने घर की उसे जरा भी याद नहीं है. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. उसकी माँ उसे बताती है कि बहुत से तूफान आए जो उनके घरों को बहा कर ले गए. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. यही कारण है कि वे सोने की तलाश में उस बड़े शहर में आ गए where he now lives, जहाँ वह अब रहता है. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Mutters means बड़बड़ाना. मेरे पास कोई काम नहीं है, वह बड़बड़ाता. Go to school, I say glibly. Glibly means easily. मैं बिना विचारे कह देती स्कूल जाओ because it was easy to say. Realizing immediately how hollow the advice. फिर एकदम से ध्यान आता कि how hollow the advice must sound, कि सलाह कितनी खोखली होगी. There is no school in my neighborhood. When they built one, I will go. Means साहिब कहता कि there is no school in the neighborhood. After listening his answer, we come to know that Sahib is interested to go to school, but his condition does not allow him. Secondly, one more thing, that there was no school in the neighborhood. If I start a school, will you come? I ask half jokingly. तो अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? मैंने हाफ जोकिंगली मतलब मजाक पूर्ण ढंग से पूछा. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों बाद अनीस जंग साहिब को भागकर अपने पास आते हुए देखती है और वह मीन्स अनीस से पूछता है Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. Embarrassed means शर्मिंदा होकर. मतलब मैंने शर्मिंदा होकर, क्योंकि मैंने एक ऐसा वादा किया था जिसका मतलब नहीं था. मैंने शर्मिंदा होकर कहा स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है. But promises like mine abound in means in plenty. Every corner of his bleak means dark world. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. परंतु मेरे जैसे वादे तो उसकी अंधेरी दुनिया में बहुत पड़े हैं. After months of knowing him, I asked him his name. Means she asked him his name after a long time. Sahib-e-Alam, he announced. He told his name as Sahib-e-Alam. He does not know what it means. उसको उसका मतलब नहीं पता. If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it.
मतलब उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता कि यदि उसे उस अपने नाम का मतलब पता होता कि वो लॉर्ड ऑफ जो साहिब आलम है उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the month, I have come to recognize each of them. एक महीने से ज़्यादा समय लग गया मतलब जो अनीस जंग है उनको उनको रिकॉग्नाइज करने में। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, उसका जो आंसर था बहुत सिंपल था कि शी डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ एट्स अनदर। एक और ने कहा हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, एक और था जिसके मतलब जो पाँव के जूते एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, उसने कहा कि इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, मतलब एक दूसरा लड़का है जिसने कि डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़ पहने हैं, वह कहता है कि इवन ही इफ़ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ मीन्स यदि वह चप्पल उतार भी देती तो यह उनको फेंक देता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके पैरों की तरफ देखा और कमेंट किया, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह पैर से दूसरे पैर पर खड़ा हो जाता है परंतु कहता कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, मतलब एक और लड़का वो कहता है कि आई वॉन्ट शूज़ जिसे पूरी ज़िंदगी जूते नहीं मिले। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में घूमते हुए, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन मतलब स्पष्टीकरण यह है कि पैसे की कमी के कारण नहीं बल्कि नंगे पाँव रहना ट्रेडिशन के कारण है, मीन्स परंपरा है उनकी। I wonder if this is only an excuse to explain away perpetual state of poverty. Perpetual means never ending. तो ऑथर जो हैरान होती है कि क्या यह एक लगातार चलती गरीबी को उचित ठहराने का बहाना है। I remember a story a man from DP once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. जब वह छोटा लड़का था वह एक मंदिर के पास से गुजरते हुए स्कूल जाता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, मतलब जहाँ पे उसका जो पिता था वो एक पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कुछ समय के लिए वह मंदिर में रुकता और जूतों के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of dissolution. Drowned means submerged और dissolution means ruined, जो कि अब वीरान था, मतलब वो 30 साल बाद वो उस टाउन और टेम्पल पे पहुंचे जो कि अब वीरान था। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived, panting. Panting मतलब हाँफते हुए। एक लड़का आता है एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को फोल्डिंग बेड पर गिरा देता है। लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, मतलब लड़के को देखकर ही वो कहते हैं कि मुझे दूसरे लड़के द्वारा जूतों की जोड़ी के लिए गॉडेस को मतलब देवी को की गई प्रार्थना याद आई। लेट मी नेवर लूज दैम व्हेन ही फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, तो वो कहता है कि मेरे ये जूते कभी गुम ना हो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। My acquaintance means introduction, मतलब पहचान। My acquaintance with the barefoot rag picker leads me to सीमापुरी, तो उसकी जो पहचान थी barefoot rag picker के साथ वो उसे सीमापुरी ले जाती है। A place, सीमापुरी मीन्स एक ऐसा place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, मेटाफरिकली मतलब सिम्बॉलिकली, हालांकि यह जगह दिल्ली के बॉर्डर पर है पर सिम्बॉलिकली दिल्ली से बहुत दूर है। Those who live here are squatters means illegal settlers,
तो दोज हु लिव हियर, जो भी यहाँ पर हैं वो सभी इलीगल सेटलर्स हैं, मतलब कि लीगली तौर पर वहाँ पे नहीं रहते हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो कि बांग्लादेश से आए थे इन 1971। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी उनमें एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस मीन्स डिसोलेट एरिया, मतलब वीरान जगह। इट स्टिल इज़, अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage, or running water, live 10,000 rag pickers. Devoid of sewage, draining और running water means कि सीवेज, नालियों या पानी के बिना यहाँ 10,000 rag pickers रहते हैं, 10,000 rag pickers रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration card that get their names on voters list and enable them to buy grain. मतलब उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है जिसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, एंड दे आर एबल टू बाय grain. Food is more important for survival than an identity. According to them, food is important than identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in fields that gave us no grain. मतलब कि खाली पेट रहने के बजाय अगर वो भर पेट सोने चले जाते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा बढ़िया है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़ मतलब फटी हुई साड़ियाँ जो उन्होंने पहनी हुई हैं, उनका एक ग्रुप है लेडीज़ का, वो कहती हैं, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने उन्हें पूछा कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ा, तो वो कहते हैं कि ये ज़्यादा बढ़िया है उनके लिए उन हरे भरे खेतों में रहने के बजाय जहाँ पर उन्हें खाने को नहीं मिल रहा। Whenever they find food, they pitch their tent. Wherever they find food, they pitch their tents that becomes transit home. जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता वहीं वह टेंट गाड़ लेते हैं, जो कि उनके ट्रांसिट होम यानी कि अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। चिल्ड्रन उन्हीं में बड़े होते हैं और उनके सर्वाइवल के पार्टनर बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और अगर बात की जाए सर्वाइवल की सीमापुरी में तो उसका एक सीधा सा मतलब है रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट। वर्षों बीतने के साथ इसने एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, रूफ ओवर देयर हेड्स, ये उनके लिए डेली ब्रेड है, उनका डेली का हर रोज़ का नाश्ता है, खाना है, और रूफ़ है उनके सिर के ऊपर। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वह जो छत टपकती ही क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, आंखों में चमक के साथ साहब कहता है कि कई बार मुझे 1 रुपया, कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिलता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, जब तुम्हें कभी चांदी का सिक्का मिले एक कूड़े के ढेर में तो तुम उसे मतलब सर्च करना नहीं छोड़ते। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और पाने की आशा बनी रहती है। It seems that for children, garbage has meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elder, it is means of survival. ये कहता है कि इट सीम्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए जो कूड़ा है उसका मीनिंग जो है, कूड़ा करकट है उसका मीनिंग अपने उसके माता पिता से बिल्कुल अलग है। जैसे कि फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए हैरानी में लिपटा है। फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सो बड़ों के लिए इसका अर्थ जीवित रहना है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums. Hums means murmur, means बुड़बुड़ाया बोला। एक विंटर मॉर्निंग की बात है। आई सी मतलब जो अनीस जंग है वो कहते हैं कि उसने साहिब को एक गेट के ऊपर खड़े देखा अपने नेबरहुड क्लब में, और जो कि वहाँ पर 2 यंग मैंस को जो कि वाइट ड्रेस थे उनको टेनिस खेलते हुए देखता है, और बाहर खड़ा हुआ है और उन्हें टेनिस खेलते हुए देखता है। आई लाइक द गेम, और वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट
टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वह फेंस के पीछे खड़ा खेल को देखकर ही कंटेंट है, संतुष्ट है। आई गो इन साइड वैन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। वो कहता है कि एडमिट कर लेता है कि वो जब वहाँ पे कोई नहीं होता तो वो अंदर चला जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, मतलब कि जो गेट कीपर है वो उसे वहाँ पे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो कि उसकी बेरंगी शर्ट और शॉर्ट के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। उसने एक्सप्लेनेशन के मैनर में कहा कि किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट, सच्चाई ये है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, कि वो किसी अमीर बच्चे के छोड़े हुए शूज़ थे। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वियर दैम, हो सकता है शायद उसने रिफ्यूज़ कर दिया उन्हें पहनने के लिए, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनके बीच में एक जूते में सुराख था। डज़ नॉट बॉदर हिम, परंतु ये डज़ नॉट बॉदर हिम, जो परंतु उसने इस चीज़ को बॉदर नहीं करता, मतलब उसके लिए साहिब के लिए ये बॉदर नहीं करता। फॉर वन हु हैज़ वॉकड वेयर फुट इवन शू विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जो लड़का नंगे पैर घूमता है उसके लिए सुराख वाले शू भी उसका सपना पूरा होने जैसे हैं। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, इंटेंटली मीन्स अटेंटिवली, परंतु वह खेल जिसे वह बहुत ध्यान से देख रहा है वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मीन्स गोइंग टूवर्ड्स अ मिल्क बूथ। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन था, कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। दूर इशारा करते हुए वह कहता है कि मैं अब चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये और पूरा भोजन मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा कि क्या उसे जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट अ केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से बेफिक्री का जो भाव था वो गायब हो गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। स्टील का डिब्बा उस प्लास्टिक के बैग से भारी लगता है जिसे वह आराम से अपने कंधे पर, मतलब ईजिली कैरी करता था, बड़े आराम से उठाया करता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग जो था वो उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैनिस्टर है वो टी शॉप के जो मालिक, चाय की दुकान के मालिक का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रह गया था। So in this way, we can say that in the end we can say that Lost Spring talks about the national shame of children being forced to live a life of poverty and exploitation.